Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So now for last 7 years, I am in touch with all the candidates. Those are appearing for banking and insurance jobs. And I have found one peculiar thing every time before declaration of result. And it is obvious also. The candidates, they indulge into lot of discussion, lot of analysis, lot of information gathering, and it creates panic in their mind or tension in their mind, and they lose peace of mind. So I will suggest something in this video how you should remain in peace of mind before declaration of result. Now there are certain events, those are certain. Certain is you have already appeared in main, your marks are closed. You have appeared in interview, your marks are closed. Now on the basis of your mains and interview marks, a inter-seniority will be inter-C merit list will be created, and if you are in merit, you are selected. If you are not in merit, you have to again appear for future exams. This is the mechanism. Now, even if I analyze performance of others, even if I analyze number of vacancies, even if I go on discussing so many things, whether my result will change? Answer is no. Your result is dependent on your performance as well as performance of your competitor. If you have outperformed others, you are selected. If you have performed less than others, you are not selected. So your own performance vis-a-vis performance of other is put to test in competitive examination. So what are my chances of selection? What are not my chances of selection? If number of vacancies increase, what will happen? If number of vacancies decrease, what will happen? These are all analysis that only give you stress. Because even if you do such analysis, you can't conclude anything. And once we cannot conclude anything, why we are entering into such type of discussions? I always advise people to avoid participation in such discussions, avoid listening such discussion, and avoid inference on such discussion. Better option is remain at peace. You have done your work. Have faith in yourself. Wait for the result. If you are doubtful about your selection, better option is focus your energies towards preparation of future exams. And if you get through in this, fine. If you don't get through in this, at least your time is not wasted. This is my advice. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. लगभग अब 7 साल हो गए मुझे उन सब यंग पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए जो बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं. और इन 7 सालों में मैंने ये पाया है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात को लेके कि उनका क्या रिजल्ट रहेगा. और ये स्वाभाविक भी है. जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसी दिन से हमारी चिंता शुरू हो जाती है कि हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे. पर क्या इससे फ़ायदा होता है, इसको हम समझेंगे. अब आपने जो मेन एग्ज़ाम दिया वो नंबर फिक्स हो चुके आपके. आपने इंटरव्यू दिया, वो नंबर भी आपके फिक्स हो गए. आपके रिटर्न और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के आपको एक मेरिट लिस्ट के अंदर प्लेस किया जाएगा. उस मेरिट पोजीशन की वजह से आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो ये किस बात पर निर्भर कर रहा है? पहला, आपकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर. दूसरा, उन लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर जो आपके साथ compete कर रहे हैं. आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता है, औरों की परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता है. तो जब हम नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिस्कशन करते हैं, जब हम उन लोगों की परफॉर्मेंस पे डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पर हम अपना वक्त ही जाया कर रहे हैं. हम अननेसेसरी एक टेंशन को खरीद रहे हैं और इस टेंशन से हम दूर रह सकते हैं यदि हम ऐसी डिस्कशंस में ना पार्टिसिपेट करें.
काफ़ी बार मैंने देखा है कि सर वैकेंसीज बढ़ गई हैं, वैकेंसीज घट गई हैं, सर मेरा क्या चांस है, मैंने इतना परफॉर्म किया है, मेरे रिटर्न में इतने से ज़्यादा नंबर है, मेरा इंटरव्यू ऐसा गया है, मेरा क्या है। तो मैं एक ही आपको आंसर देता हूँ कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि आपकी परफॉर्मेंस तो ठीक है, पर औरों की क्या है ये कैसे पता? क्योंकि ये तो इस पे निर्भर होगा ना कि आपका सीरियल नंबर क्या है मेरिट के अंदर, और ये किस पे निर्भर होगा? आपकी परफॉर्मेंस और दूसरे लोगों की परफॉर्मेंस, जो कि अभी जरूरी नहीं है सोशल मीडिया में जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो अपनी सच्ची पोजीशन बता रहे हो। ये भी जरूरी नहीं है सभी लोग वहां कमेंट कर रहे हो सकता है कई लोगों की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते सोशल मीडिया में, आपको कैसे पता लगेगा उनके बारे में? तो बेहतर ऑप्शन क्या है कि हमने एग्ज़ाम दे दिया, पीस ऑफ माइंड से हम इंतज़ार करें रिजल्ट का, जो भी होगा अच्छा ही होगा, अपने ऊपर भरोसा करें, ईश्वर पे भरोसा करें। अगर आपको डाउटफुल है कि भाई मेरा नहीं होगा, कुछ लोगों को डाउट होता है अपने परफॉर्मेंस पे, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी फोर्थकमिंग एग्ज़ाम है उन पर फोकस करिए, वहाँ एनर्जी लगाइए, पर बार बार डिस्कशंस करने से कुछ हासिल नहीं होता। अब काफ़ी दिन तक मैं पेशेंस रखता हूँ, जो भी आप पूछते रहते हैं जवाब देता रहता हूँ। जब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी हो गई, फिर एक छोटी सी वीडियो आपको कूल डाउन करने के लिए हम डालते हैं। मकसद ये है आपका पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। यदि आप अननेसेसरी फिक्र करते रहेंगे तो आप अपनी फ्यूचर जो प्रिपरेशन है उसको भी अफेक्ट कर रहे हैं, अपने दिमाग को भी अफेक्ट कर रहे हैं। हमेशा खुश कैसे रहना है ये सीखिए, और ये भी संभव है। आपने देखा होगा, मैं तो आपके सामने का एग्जांपल हूँ, ये तो ना कि मैंने ज़िंदगी के अंदर मेरे को परेशानियाँ नहीं आई होंगी, बहुत आई होंगी, बट मैंने कभी परेशानी को परेशानी माना ही नहीं। मैंने हमेशा उस चीज़ को देखा जहाँ से खुशी मिल रही है, जहाँ से खुशी नहीं मिल रही है उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो मैं खुश रहता हूँ। क्योंकि मेरे सामने खुशी के पल भी आएंगे और दूसरे पल भी आएंगे। अब मेरे ऊपर है मुझे किसको चुनना है, जिसको मैं पकड़ लूँगा वही मेरा जीवन है। अगर मैं खुशी को पकड़ूंगा, खुशी मेरा जीवन है। अब मैं देखो रिटायर हूँ, ठीक है, फिर भी मैं खुश रहता हूँ, आपके साथ बात करता रहता हूँ, यंग जनरेशन की मदद करता रहता हूँ, और किसी की सिलेक्शन हो जाती है मैं खुशी मना लेता हूँ, मुझे लगता है मेरे एक और बच्चे को जॉब मिल गई। तो खुशी के लिए तो आपको मतलब बहाना ढूंढना है ना। अब 1,19,000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए, अब मान लो इसमें 2,000, 3,000, 4,000 का सिलेक्शन हो जाएगा IBPS में, मेरे को तो 4,000 खुशियाँ मिल गई। अब आप एक एक करके आप बताओगे सर आई एम इन, आई एम इन, आई एम इन। अब मैं चैनल पे देख रहा हूँ 10,000 से अधिक एम्प्लॉइज़ हैं हमारे इसके ऊपर, जो ऑलरेडी या तो LIC में काम कर रहे हैं, या बैंकों में काम कर रहे हैं, या अदर कंपनीज में काम कर रहे हैं। कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने पोस्ट भी किया था कि सर मैं नेहरू युवक केंद्र में लग गया, तैयारी बैंकिंग की कर रहा था, सेम प्रिपरेशन उसके काम आ गई वहाँ पे। तो खुशी के लिए तो बहाना चाहिए, और दुखी रहने के लिए भी बहाना चाहिए। तो बहाना ढूंढिए खुश रहने का, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।